Good morning, ma'am. Good morning, sir. Uh, First of all, thank you for the opportunity for giving me the chance to introduce myself. My name is Tushar Kumar Sinha. I am from Ranchi, Jharkhand. I have completed my primary and secondary education from Cambrian Public School, Kanki Road, Ranchi, Jharkhand. After that, I went to Odisha for my engineering course from C.V. Raman Global University in Electronics and Telecommunication branch. Some of my achievements are like I was the cultural secretary of our college. I was declared runner-up at Smart India Hackathons, and uh, I have completed one internship from one of the prestigious institution that is DRDO. Currently, I'm working at iMerit Technologies Private Limited, and I live in a small family of four members, including me. My father's name is Mr. Sanjay Kumar, and he's a salesman. My mother's name is Mrs. Munni Devi, and she's a housemaker. I'm having one younger brother who is now in class 12, and he pursued commerce as his stream. Some of my hobbies are like I love singing songs. I listen music. I love doing physical activities like playing cricket and every outdoor activities. And yeah, doing mental calculations and aptitude. All these are my hobbies. So that's it. Thank you. Okay. When did you complete your graduation? 2023, ma'am. Okay. So is this your first attempt at banking examinations? No, ma'am. A previous year, I had given the exam and I was not selected at prelims. Actually, I got 33 only. Why so? Looks like you are very academically smart. Yeah, because I was not prepared for that. I have to attempt at that time. I have to attempt in 60 minutes, 100 questions, and I was not very well prepared for that. And that's why I got only 33. But after preparing for the exams, I got to clear prelims as well as mains in RRB PO, RRB clerk, and in this IBPS PO also. Okay. So why did you choose banking? Uh, as a engineer, I as at the time of my college campus placement, I was placed in a multinational company that was Sopra Steria, and they provided me LOI after getting placed, and but they just told me that after completing your graduation engineering, you can join us, but they extended the deadline of joining after giving LOI, and after extending the deadline, they rejected my offer letter. So there is like in banking sector, I think this will not going to be happen in this way, and yeah, there is lot of growth opportunity also present in banking. So that's why I want to join banking as my career. But your stream has been totally different and you have been academically good in all those streams. You have pursued a lot. So don't you think that will be a waste and it will not be of any use in the banking sector? No, ma'am. Actually, it will be very useful in when I will join bank. Like whenever, first of all, if I'm working in a bank and I will have to manage all the customers and the staffs as an officer. So I have to look after many things, like so that uh, customer will not face any issues. Like if there is something happening, like mismanagement of routers or any internet connection issues or any backend problems related to any engineering things. So I can help bank in getting all those stuffs be ready in for the so that the customers will not face any challenges or any issues. But that will not be your job role. Your job is to manage the customers. Technical department is not your role. No, no, I understand that department is not my role, and I'm explaining that for the customer, from the customer point of view, they will not get hesitated or they will not get any type of stress, so that I will provide them smooth supply of everything. Like if there is a something happening like in a bank only, if there is something happening like a very little things like router problems or like something very where
इफ एज अ नॉन नॉन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अगर मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं वो सारा चीज़ फिक्स नहीं कर सकता। मतलब अगर एक कीबोर्ड इश्यूज है, मतलब छोटा छोटा चीज़ जिसकी वजह से बैंक में डिले हो सकता है, कस्टमर्स को वेट करना पड़ सकता है, तो वो चीज़ को मैं वहाँ पे इमिडिएटली, वहाँ पे एक छोटा सा चीज़ है वो मैं हैंडल करके उसको ठीक कर सकता हूँ, अगर राउटर ठीक का है। कनेक्शन ओके। नहीं आ पा रहा है। यस मैम। पर आपको नहीं लगता कि ये चीज बहुत छोटी चीजें हैं जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप जितनी आप क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स आपने बताई अपने इंट्रोडक्शन में, उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा पैकेज आपको बाहर एमएनसीज में मिल सकता है अगर आप ट्राई करें यहाँ के बदले। और ऐसा लगता भी है कि आप स्विच कर ही लेंगे। आप बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये एक एग्जाम है जो बहुत इजीली आपको जॉब मिल रही है, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट तो है नहीं यहाँ पर। नो मैम, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ऐसा रहा कि मतलब मेरे फैमिली में भी दो तीन लोग हैं जो मेरे मतलब पीओ में हैं, और जिनसे मैं ट्यूशन लेता था विद इन क्लास 7 तक। तो वो मैम जो थी मेरी, तो उनके हस्बैंड जब मतलब वो जब मैरिड हो रही थी, जब उस समय मैं क्लास 7 में था, तो उन्होंने यही चीज कहा था मुझे कि तुम्हारा मतलब मेंटल मैथमेटिक्स जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है, तो तुम बैंकिंग एज अ करियर मतलब सोच सकते हो। और मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग में एनरोल भी हुआ था, तो उस टाइम से ही मतलब मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सॉल्व करना ये सारा चीज मेरा अच्छा था। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं पे मतलब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं था, जिस वजह से मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं निकला। नहीं तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे बैंकिंग ही ज्वाइन करना है। ओके। आपकी कैलकुलेशंस लाइक अगर मैं आपसे कुछ कैलकुलेशन पूछूंगी मल्टीप्लिकेशन तो आप इजीली बता पाएंगे, ऐसा है? यस मैम, आई विल ट्राई। यस मैम। ओके। 24 into 29। It will take ma'am time, like 24 into 29. Mm. सो लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर यू टेलिंग कि किस तरह से आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं? हाउ? Means एक्सप्लेन टू मी जो आप बार बार ओके मैम। बता। हम्म। अगर जैसे एक स्टूडेंट है जिसको अगर 24 into 29 करने में अगर 30 सेकेंड्स लग रहे, तो मुझे वो चीज़ करने में मुझे 20 सेकेंड्स लगेंगे या फिर 15 सेकेंड्स लगेंगे। ये चीज़ है, अगर मतलब मुझे बट हाउ इज इट यूजफुल? हाउ इज इट यूजफुल? ये तो आपको उसको भी उतना ही टाइम लग जाएगा आपको भी, क्योंकि कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं 5 सेकेंड्स में आप बता सकते हैं। इट विल नॉट टेक यू 20 seconds। इफ यू आर टेकिंग 20 seconds, यू आर नॉट डूइंग द स्मार्ट वर्क, एंड वी नीड नो मैम। स्मार्ट पीपल टू रन Ma'am, द बैंक। yes, ma'am. I'm just giving one example actually for instant calculations. Like you can just tell like if you want to add 85 and 75, how much it will be. For a normal people, it will take time, but for me, I can just add it very fast. That's what I'm telling. Means in a बट आई seconds I डोंट can थिंक, tell, बट इट इज नॉट यूजफुल but it will इफ यू। increase your. Okay, ma'am. Yes, no, As no, it will not. When you will come into the banking sector, if you are selected, you will know this is of no use. ma'am, but There it are will it will. calculators, there is Excel, there are formulas that are already present. You do not have to do anything manually. Someone coming Yeah, but from commerce background, someone coming from arts background, non-mathematical backgrounds are doing exactly uh, exponentially good. So there's no difference in you and the person who's working in a bank. So there's nothing different. Anyways, you told me that you like singing songs. yes, What ma'am. genre do you listen to? Ma'am, ma'am, all types of song like pop songs and slow songs. Every song I like. I sing also and I can listen also. ओके। कुछ And ऐसे maybe अवार्ड्स आप बताओ जो सिंगिंग से रिलेटेड दिए जाते हैं। Oscar award is the Oscar award, Grammy award, and yes, ma'am. ओके। रिसेंटली इंडिया की कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर्स में? लापता लेडीज, आई थिंक। यस मैम। उसके अलावा अच्छा, अभी तक इंडिया में से किसी मूवी ने ऑस्कर जीता है? नो मैम। यस, नो मैम। ओके। One song was there, Jai Ho, and RRR song got nominated for the Oscar award or Grammy award, I ऑस्कर। think. ओके।
ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड थोड़ा सा बताओ कि क्या जानते हो बैंकिंग के बारे में। Ma'am, I have prepared for the banking awareness things like from your PDF only, ma'am. I have just prepared all that. ओके, तो Okay. अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट और चेक में डिफरेंस बताना होगा तो कैसे समझाओगे एक कस्टमर को। डिमांड ड्राफ्ट जनरली जैसे वो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस अगर आपके मेंटेन है, मतलब जितना अमाउंट का आपको डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करवाना है, अगर किसी को पे करना है थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, तो उतना अमाउंट आपके अकाउंट पे पहले तो होना चाहिए। और अगर आपको चेक देना है तो आप चेक दे दोगे, अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो फिर वो चेक बाउंस होगा, जिसकी वजह से आपको एक पेनल्टी पेनल्टी लग सकता है। अ, ठीक और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि है। अगर वो कोई जिसके नाम पे वो इशू किया गया सिर्फ वही उसको अपने नाम पे मतलब ले सकता है, मतलब जो पेई है सिर्फ वही उसको अपने अकाउंट में ले सकता है, एक्स्ट्रा कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। बट चेक के केस में ये चीज़ पॉसिबल है कि किसी और के पास अगर चला जाए तो वो ऐसा हो सकता है कि कोई उसको यूज़ कर ले। ओके, एथिक मतलब अच्छा, एक अनएथिक। कस्टमर है जिसका अकाउंट हमारे बैंक में नहीं है पर उसको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो क्या हम उसको डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी दे पाएंगे। अगर वो नहीं, सॉरी मैम, आई एम नॉट हैविंग आइडिया अबाउट दिस। ओके, आपने बनवाया है कभी डिमांड ड्राफ्ट। यस मैम। ठीक है, कौन से कॉलेज बैंक का से बनवाया था कॉलेज आपने। इंडियन ओवरसीज बैंक से। इंडियन ओवरसीज बैंक से, आपका अकाउंट है उस बैंक में। यस मैम। ओके, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी उन्होंने आपसे जब आप गए डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए। मैम कुछ भी नहीं, जैसे एक्चुअली मैंने एक लोन लिया था, एजुकेशन लोन। तो उसी के ओके। बिहाफ में वो क्रेडिट के बस वो मतलब जिनको पे करना है, जैसे जो मेरे कॉलेज का नाम है जिनको पे करना है, बस उनका नाम चाहिए था उसमें, ओके, अच्छा, जिस नाम से बैंक अकाउंट है एक्चुअली। यस मैम। ठीक, ओके। आपने एजुकेशन लोन लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके एजुकेशन लोन का। मैम इट इज़ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लाइक व्हेन आई हैड टू, मैंने जब लोन लिया था तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 8.25 था, अभी 11.65 और 35 समथिंग है। ओके, क्या होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली देर इज टू टर्म, MCLR एंड MBCR। तो अगर हम ईबीएलआर बोलना चाहते हैं। एम एम यस मैम, EBLR एक्सटर्नल बैंकिंग लेंडिंग रेशियो रेट। सो हम्म। जब भी मतलब बैंक वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को देती है, इसका मतलब ये है कि जो सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स है लाइक रेपो रेट और जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से बैंक को मतलब चेंज करना पड़े इंटरेस्ट, तो वही होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब जैसे रेपो रेट अगर कम है तो फिर EMI कम हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ अच्छा, EBLR। अगर अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक्स का वो भी इंक्रीज कर देंगे बैंक। यस मैम। इसको एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो कि क्यों होता है ऐसा। मैम ये क्वेश्चन मैंने भी बैंक में पूछा था कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ा दिया गया है, मतलब जैसे जिस टाइम पे मैंने लिया था तो वो 8.5% था, बट अभी मुझे 11.65 में क्यों पे करना पड़ रहा है। तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि अ, हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फंड्स होते हैं, मतलब जितना मतलब अभी लेट से 4 लाख है, तो हम लोग अभी वो चीज़ को अगर मेंटेन करके चल रहे हैं, 4 लाख है, अगर हम उसको लोन में किसी को डिसबर्स कर रहे हैं, फिर कहीं से NPA भी हो रहा है, मतलब जिसकी वजह से मेरा पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारा फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग को RBI से लेंड करना पड़ता है पैसा। हम बोले कि बैंक के पास भी तो एक अपना पर्टिकुलर अमाउंट है जिसको वो लेंड करे, तो फिर रेपो रेट का कोई नीड तो है नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास भी शॉर्टेज होता है, हमें भी रेपो रेट पे ही लेना पड़ता है अमाउंट, इस वजह से हम लोग उस फैक्टर को लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे रेपो रेट का यूज करना पड़ता है वाइल गिविंग द लोन। ठीक है, इसको क्योंकि थोड़ा मेरे और पास क्लियर, इतना सरकत। हाँ, आप इसको थोड़ा और क्लियरली समझना।
एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपने जो लोन लिया है एजुकेशन लोन, वो सिक्योर्ड है या नॉन सिक्योर्ड लोन है? मैम सिक्योर्ड लोन है मैम। सिक्योर्ड लोन है। कंप्लीटली सिक्योर्ड या कुछ यस। परसेंटेज सिक्योर्ड है? कंप्लीट सिक्योर्ड। कंप्लीट सिक्योर है मैम। अच्छा। अगर आप बैंकर हैं और आपको किसी को एजुकेशन लोन देना है अनसिक्योर्ड, तो कितना दे सकते हैं आप? कितने अमाउंट तक अनसिक्योर्ड लोन दे मैम सकते हैं? अप टू 4 लाख। अप टू 4 लाख। आर यू श्योर? यस मैम। सिक्योरिटी में आपने क्या दिया अपने लोन की? जैसे मतलब मेरे जमीन का वो फोटो लेकर के, जैसे मेरा एक अपना शॉप भी है तो शॉप का भी फोटो लिए, इवैल्यूएट किए कि आपके शॉप में कितना अमाउंट का लगभग प्रोडक्ट्स है। तो मेनली वो शॉप का ही वो एज अ कोलैटरल मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी रखे हैं। लेकिन मतलब आपको शॉप के लगता है शॉप प्रोडक्ट्स। के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो तो आप बेच सकते हो। बेच सकते हैं बट वो रनिंग शॉप है, वो सारा चीज देख करके बस फोटो लिए, और फिर एक मतलब मेरा प्लॉट भी है साथ में ही, मतलब मेरे घर के साथ ही है, तो वो एक साथ फोटो लिए हैं। मतलब वो चीज को वहाँ पे क्या चीज मेंशन की एग्जैक्टली वो चीज पता नहीं है, लेकिन वो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो शॉप एज अ सिक्योरिटी रखे हैं, मतलब शॉप के बट प्रोडक्ट्स वगैरह ही। उन्होंने स्टार्टिंग में आपसे साइन कराए होंगे अरेंजमेंट लेटर पे, उस पे लिखा होगा किस चीज के लिए साइन करा यस रहे सर। हैं, क्या तो क्या उन्होंने कोलेटरल रखा है। एज अ कोलैटरल शॉप ही रखा है सर, मतलब शॉप के प्रोडक्ट्स ही रखे हैं उन्होंने। मतलब बोला भी था ये चीज कि आपके आपके हिसाब से आपके शॉप में कितना का क्या है, टर्नओवर क्या है, कैसा है, बिजनेस कैसा है, वो सारा चीज देखने के बाद फिर वो इवेलुएट किए कि हाँ मतलब दिया जा सकता है इतना। और मेरा लोन भी सर 4 लाख ही है। ऐसे तो वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आ सकता है, बट फिर भी उन्होंने कोलैटरल वे में ही दिया है मुझे। आप रांची झारखंड से हैं? यस सर। ओके, रांची से कुछ फेमस लोगों के नाम बताइए। सर महेंद्र सिंह धोनी, ओके। and yeah, one of the prominent leader, that is Shibu Soren, is now currently a member of Rajya Sabha also. कितना मेंबर से राज्यसभा में? Uh, in India, there is total 243 seats, and in Jharkhand, there is 6 seats. और कैसे डिसाइड होता है किस स्टेट कितनी सीट्स होंगी राज्यसभा में? Uh, Sorry, sir, I'm not having idea about this. ओके, चीफ मिनिस्टर कौन है अभी झारखंड के? हेमंत सोरेन है सर। ओके, अभी हेमंत सोरेन कंट्रोवर्सी में थे कुछ टाइम पहले, बताएंगे क्या न्यूज़ थी? एक्चुअली बड़गाई बोल के एक जगह है सर यहाँ पे, तो वहाँ पे उनका जो मतलब प्लॉट्स है, वो कहा जा रहा था कि वो इलीगल प्लॉट्स है, मतलब वो किसी से गलत वे में परचेस किया गया है उनके द्वारा। तो इसी इसी वजह से उनको मतलब कुछ दिन के लिए सस्पेंड करके जेल में रखा गया था, और उनके जगह पे चंपई सोरेन को कुछ दिन के लिए सीएम वाला पोस्ट दिया गया था। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? ये सर, मतलब कौन सा एडिटोरियल फॉलो न्यूज़पेपर? करता हूँ एक्चुअली। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सर मैं एडिटोरियल फॉलो करता हूँ एक्चुअली, कंप्लीट कौन न्यूज़पेपर से नहीं, न्यूज़ के? उसमें मिक्स रहता है कौन से मतलब। न्यूज़ के? कौन से न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ते हो आप? टाइम्स ऑफ इंडिया सर। ओके, कौन है एडिटर उसमें? वन सर है, एक सर है मतलब आशीष अग्रवाल सर, सॉरी आशीष गौतम सर। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर है? नो सर, वो एडिटर नहीं, वो एडिटोरियल का क्लास लेते हैं एक्चुअली। नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट कि एडिटर जो एडिटोरियल लिखते हैं वो कौन है? हम्म। सर नो आइडिया सर। मीन्स आप रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे न्यूज़पेपर से? नो सर, मीन सर फॉलो करता हूँ, मतलब मैं डेली न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, बट ऑनलाइन पढ़ता हूँ, एज अ फिजिकल पेपर से नहीं पढ़ता हूँ। ओके, कौन से सोर्सेज हैं आपके ऑनलाइन? सर वही आशीष गौतम सर का एडिटोरियल फॉलो करता हूँ, मतलब उनका क्लास करता हूँ सर, ऑन डेली बेसिस। ठीक है। आपके फादर क्या काम करते हैं? सर ही इज़ अ सेल्समैन।
कितनी सेल्स करते हैं वो मंथली की? सर मंथली, सर सेल्स इट विल बी लाइक सर lakh, 1 lakh or 1,50,000। ओके, कितना आईटीआर फाइल करते हैं इटली? Sir, actually, I'm not having that much of idea, but he files ITR and GST also. He's having GST number also because he supplies stationery items in bank, colleges, and schools. सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है, एज ऑफिसर आपको लोन डिस्पर्स करना हो, अपने फादर को लोन सैंक्शन करना हो, तो आप किस बेसिस पे करेंगे? सर यहाँ पे दो चीज़ होता है। अगर एज अ सैलरीड पर्सन अगर कोई है तो उनको अगर हमको लोन देना है तो हम उनका फॉर्म 16 चेक करेंगे। और अगर जैसे मेरे पापा बिजनेसमैन है तो उनका मैं 3 साल का ITR फाइल चेक करूंगा। और मतलब यही चीज़ मेनली चेक करूंगा सर वाइल गिविंग द लोन, कि तीन जीएसटी साल भरते उन्होंने हैं आपके ITR फादर? फाइल किया है। यस सर, नील शो करते हैं उसमें सर। जीएसटी में जो लास्ट मंथ का जीएसटी या 3B है, उसमें कितना सेल्स है आपके फादर का? कुछ सॉरी सर, आइडिया? वो मैं फाइल नहीं कर। नो सर। सर एक बार ओके। मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि उस टाइम पे वो नील शो करते हैं, NIL ऐसा कुछ नील शो करते हैं उस टाइम पे। मतलब ये 1 साल पहले का बात था। इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया ना विद योर इंट्रोडक्शन, एक तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, कट इट शॉर्ट। आपने ओके बहुत सारे मैम। जिसका फिर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, बहुत इररिलेवेंट जा रहा है। लाइक अच्छी बात है, यू हैव डन अ लॉट, बहुत सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन जब इतनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर भी होना चाहिए कि कैसे आप हेल्प करोगे। लाइक वो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि राउटर ठीक कर देंगे या समथिंग, उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप एक्सपीरियंस शेयर करो, कि जो एक्सपीरियंस आपने जॉब, अभी तो हमने जॉब रोल का नहीं पूछा, आपने बताया था आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बट वो इतनी सारी यस। बातें होती चली कि जॉब रोल रह गया कि क्या जॉब है। तो जॉब में जो एक्सपीरियंस आया है, जो आपकी मैनेजरल स्किल्स रही हैं या फिर आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स है, आपने बोला भी था कि आप कुछ कल्चरल हेड थे या समथिंग, है ना, वहां से कल्चर जो सेक्रेटरी। स्किल्स आई, हाँ, उसमें जब आप उन स्किल्स की जिक्र करोगे ना तो वो ज्यादा बेटर होगा, रादर कि क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो मैं राउटर्स ठीक कर सकता हूँ, वो तो आपका काम नहीं, मतलब वो बहुत इररिलेवेंट था। दूसरा, यू फोकस्ड अ लॉट कि मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, बट व्हेन आई आस्क्ड यू कैलकुलेशन तो आप नहीं बता पाए। वो तो इसका मतलब कोई रेलेवेंस वाली चीज नहीं है। आजकल स्मार्ट कंप्यूटर्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, इतनी, मतलब हर चीज इतनी एक्सेसिबल है फॉर एवरीवन। जिसको नहीं आता है, अगर मेरे को 20+25 नहीं पता है फिर भी मैं सिस्टम पे कर लूंगी ना, आई एम इक्वली एफिशिएंट देन यू विल बी, जिसको 20+25 पता है 45, ठीक है। तो माई सजेशन वुड बी कि ऐसी चीजें बोलो जिसको आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाओ और जिसको सुनने में भी अच्छा लगे। अदरवाइज तो फिर ये देखो कितना लंबा चला गया ना इंटरव्यू हमारा, सिर्फ इसी बात पे कि बताओ बताओ, वो चीज नहीं हुई। तो एक तो इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट करना है और थोड़ी रेलेवेंट चीजें बोलनी है जो कि आपको स्मार्ट दिखाएं रादर देन ब्रैग करना, है ना। और आपने एक ही बार में ऑलमोस्ट, पिछली बार तो आपने प्रिपरेशन नहीं करी, एक ही बार में क्लियर कर दिया, तो इट शोज कि आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो, बहुत एफिशिएंट भी हो, बहुत स्मार्ट हो। तो आप उस चीज को पोर्ट्रे करो वैसा ही, कि अगर आप कोई चीज बोल रहे हो कि आपने डीआरडीओ से इंटर्नशिप करी है ये सब, तो वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए आपकी बातों में कि आप कितना स्मार्ट हो। और ऐसे ही लोग चाहिए उन लोगों को तो बैंकिंग में, है ना। तो फिर इस पे थोड़ा सा काम करो। बाकी मुझे ऐसा, मतलब आंसर्स आपने ठीक किए हैं, बस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक तो ब्रश अप कर लो कुछ कुछ चीजों को। दूसरा, आप ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, जैसे आपने बोला कि मैंने खुद एजुकेशन लोन लिया हुआ है। अगर पूछ रहे हैं तो ठीक है, अगर कहीं बात निकल आई तो अलग बात है। आपने खुद से ही बता दिया, उसके ऊपर फिर इतनी सारी चीजें चली गई, फिर आपको नहीं पता सिक्योरिटी की, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, है ना, एक साथ इतनी सारी चीजें जो कि आपको जरूरत ही नहीं है बताने की। ऐसी चीजें बोलो जिसपे आपको 100% कॉन्फिडेंस है, वो पूछेंगे तो वो आप बता दोगे जो आप पढ़कर आए हो। तो सिर्फ वही वही चीजें हमें मेंशन करनी है। और मैंने आपसे, आपने सुना नहीं वो क्वेश्चन मैंने पूछा था बैंकिंग के बारे में आप क्या जानते हो, तो आपने कहा बैंकिंग अवेयरनेस मैंने पढ़ी है, आपकी पीडीएफ से ही पढ़ी है। तो फिर वो क्वेश्चन भी सुनना है हमें। हो सकता है यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि
इंटरनेट के इश्यूज की वजह से या कुछ डिस्टरबेंस हो जाए तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन वहां थोड़ा रखना कि पेशेंस रख के हमें क्वेश्चन सुनना है उनका, उसके बाद आंसर करना है। बाकी जिस तरह से आप बात कर रहे हो वो सही है, एंड यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो कोशिश करना, वैसे भी वहां पर हिंदी में ही, पटना में इंटरव्यू है, हिंदी में ही होगा, तो कोशिश करना जिस भी लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आप आंसर करो, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस की आपको रिक्वायरमेंट होती है, वही आपका किंग है कॉन्फिडेंस वहां। ठीक है, तो उसको पकड़ के रखना है। बाकी आपकी नॉलेज मुझे ओवरऑल अच्छी लगी है, ठीक लगी है, यू आर अ गुड कैंडिडेट और बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके। बस ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ज्यादा ओवर शेयर नहीं करना है, दैट इज माई सजेशन टू यू। अच्छा जाएगा इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट। जब आप एक स्टोरी बता रहे थे कि मेरी ट्यूशन वाली मैम थी, उन्होंने मुझे कहा था तुम बैंक में जा सकते हो, आपने इरेलीवेंट चीजें मेंशन की कि उनकी मैरिज हो रही थी तो शादी हो रही थी, ये बात मेंशन करने की थी नहीं। हाँ, बहुत लेंथी हो जा रहा है। ओके आप ओके ओके बहुत कहानी बना ओके दे रहे हो, इंटरव्यूअर बोर हो जाएगा, उसे लगेगा कि बहुत फालतू की बातें बोल रहे इतना टाइम हो। तो दूसरा, मिलेगा ही ओके। नहीं ना। हाँ हाँ, आपको दूसरा, नहीं जब मिलेगा। मैम ने आपसे 24x29 पूछा, आप नहीं बता पाए, लेकिन जब आप कंपैरिजन कर रहे थे मैं दूसरे से बेटर हूँ, वो आपका कंपैरिजन कोई बेसिस नहीं था कि आपने देखा दूसरा कर पाएगा ये उतने में नहीं कर पाया था। बिना किसी बेसिस के हमें कोई बात नहीं करनी वहां पे। आप फालतू में ये पॉइंट को कंपैरिजन ही कर हटा रहे दीजिए सर। अब थे। इस पॉइंट को हटा दो, ट्राई करो। अगर आपसे हो रहा है तो हम्म, ठीक है। आप बार बार मेंशन हम्म, करोगे मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो वो पूछेंगे इस तरह कैलकुलेशन कोई। आपने एक बार मेंशन कर दिया, ठीक है, उन्हें पता चलिए। आप कंटिन्यूअसली वो वाला चीज मेंशन करोगे तो उन्हें लगेगा कि मैं टेस्ट लेता हूँ उसका कितना अच्छा है एप्टीट्यूड। और कितना ही अच्छा हो, एक किसी ना किसी में फंस ही जाता है कोई भी। इसके बाद, अभी तो आपने बोल दिया कि मैम आपकी पीडीएफ से पढ़ा है, वहां आप ऐसा नहीं बोल सकते मैम आपकी पीडीएफ, सर आपकी पीडीएफ से पढ़ा है। तो जब वो हम्म, पूछे क्या पढ़ के आया है, तो अपने हिसाब से दो चार टॉपिक बताओ, या फिर बोल दो कि सर बेसिक बेसिक जो बैंकिंग के बारे में वो सब मैंने पढ़ा। इसके बारे में जब मैम पूछती थी फ्लोटिंग रेट्स क्या होते हैं, एमसीएलआर और ईबीएलआर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने अलग से मेंशन किया एमसीएलआर और ईबीएलआर, फिर पूछ सकते हैं क्यों है। दूसरा, बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, बैंक इसलिए नहीं करता कि आरबीआई से लोन लेना पड़ता है इसलिए फ्लोटिंग रेट रखते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है, बैंक को रखना ही पड़ेगा, बैंक्स पहले नहीं रखते थे। आरबीआई ने स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस दी है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। अगर बैंक्स रेपो रेट के साथ लिंक नहीं होंगे तो रेपो रेट से हम इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो हमें 2 से 6% के बीच रखना है। यस तो सर। फिर इस चीज का जो भी एमपीसी का मकसद है वो खत्म हो जाएगा जब नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक्स को रखना ही हम्म, पड़ेगा वो लिंक।